Hello students, how are you? Myself, Vivek Bharti, once again in front of you with my next video for the lesson Chemical Equation and Reaction Part 2. Right? In this session, basically we will understand that how we'll balanced and unbalanced chemical equation, which we have discussed in my previous session about the chemical reaction, chemical equations, balanced and unbalanced chemical equations, how we make a chemical equation more informative, right? These all things just we have discussed in my previous video, and now today we'll discuss about that how we will balance an unbalanced chemical equation. Okay, so यहाँ पर हमने एक already chemical equation लिखी हुई है which I have taken from your our NCERT book, right? So इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, right? And in this method we'll understood step by step. Different steps are mentioned, and in each step में हमको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, right? So the chemical equation which I have taken is Fe plus 2H2O gives Fe3O4 plus H2. This is the chemical equation which we have to balance, right? Step by step, we'll move step by step. The first step is this one, that write down the given chemical equation, right? जो भी आपको chemical equation given है, अगर आपको उसकी word equation दी है तो उसको chemical equation में convert कर लीजिए, change कर लीजिए और उसको लिख लीजिए. After that what we'll do, after that we'll put box around the symbol of every element or compound. हर एलिमेंट और कंपाउंड को, सब्सटेंस को, इधर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बॉक्स में बंद कर दीजिए. क्यों बंद कर दीजिए बॉक्स में? बॉक्स में बंद करने का मतलब है कि अब हम लोग इस केमिकल फॉर्मूले से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद हो चुका है. हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी पुट अ बॉक्स, राइट? It simply signifies to us that we can't make any change in the chemical formula of the compound, right? After that what we'll do, इसके बाद हमको पहले पता करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से एलिमेंट हमारा बैलेंस है, कौन कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है. उसके लिए वही हम लोग तरीका अपनाएंगे जो अपने पास बहुत आसान सा तरीका है. टेबल फ्रेम करेंगे और उसमें हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे बैलेंस्ड हैं और कौन कौन से एलिमेंट अनबैलेंस्ड है, राइट? सो कम टू द स्टेप 1. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. स्टेप 1, राइट? स्टेप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं? फाइंडिंग द एलिमेंट, फाइंडिंग द अनबैलेंस्ड एलिमेंट, राइट? टू फाइंड अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे अनबैलेंस्ड है, राइट? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यहाँ पर हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल में क्या करना है? 3 कॉलम. इन फर्स्ट कॉलम सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हो आपके उनके सिंबल्स लिखेंगे. सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड. एंड थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन product side, right? In this way we'll prepare 3 column. In first column we'll simply write down the symbol of the elements, right? Second column number of atoms of element which we'll take here in reactant side and in product side. Let's start. The first element is Fe from the reactant side. It's clear, Fe. Second one is H and third one is O. There are 3 elements, right? In this chemical reaction, 3 elements are present. Fe,
H and O, and we know that these elements will all are also present in the product side because matter can neither be created nor be destroyed, it remains conserved, right? तो यही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। अब उनके नंबर ऑफ एटम्स हमको लिखने हैं कि भाई रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो चेक करते हैं भाई, रिएक्टेंट साइड में Fe के एटम कितना है भाई, 1, देखिए ओनली 1 एटम इज देयर। प्रोडक्ट साइड में देयर आर 3 एटम, राइट। Fe का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है। तो साफ साफ हमको यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया कि Fe हमारा बैलेंस नहीं है, राइट। क्योंकि अगर बैलेंस होता तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बराबर होते। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी एटम्स, 2 एटम्स आर देयर। प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स, इट मींस हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, राइट। 2 number of atoms on both sides are equal, it means hydrogen is balanced. Let's take the oxygen. Oxygen reactant side only 1 atom, and how many product side? Product side there are 4 atoms, correct? So this table simply help us to find out our target, कि हमारे टारगेट कौन कौन से हैं, किन एलिमेंट्स को हमको बैलेंस करना है जो हमारे अनबैलेंस्ड है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी इजी स्टेप। टेबल बनाइए, उसमें एलिमेंट्स का सिंबल लिखिए, रिएक्टेंट साइड में एटम काउंट कीजिए, प्रोडक्ट साइड में एटम काउंट कीजिए और पता कीजिए कौन कौन से एलिमेंट हमारे बैलेंस नहीं है, या केमिकल इक्वेशन किन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बैलेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग लिख देंगे दैट केमिकल equation is unbalanced with respect to Fe and O. Fe and O means iron and oxygen। ये हमको हमारे टारगेट मिल गए और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन्हीं एलिमेंट से बैलेंसिंग शुरू करेंगे, राइट। सो दिस फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू ऑल। सभी को फर्स्ट स्टेप क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत आसान सा स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उससे देख के हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल से पता करेंगे कौन कौन से एलिमेंट हमारे बैलेंस हैं और कौन कौन से एलिमेंट हमारे अनबैलेंस्ड हैं, राइट। सो दिस इज आवर टारगेट, दैट इज Fe एंड O, राइट। आयरन एंड ऑक्सीजन हमारे अनबैलेंस्ड है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब जब एक से अधिक एलिमेंट हमारे अनबैलेंस होते हैं तो हमारे सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई किस एलिमेंट को पहले बैलेंस करना स्टार्ट करें, राइट। whenever more than one elements are unbalanced, then we have to decide that which element should be balanced first, ताकि हमारा काम आसान रहे। तो इसके लिए याद रखिए, बड़ा आसान, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हों, राइट, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स आपके ज़्यादा हों उससे हम लोग बैलेंसिंग हमेशा स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा एटम को बैलेंस पहले कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर छोटे मोटे एलिमेंट्स को हम लोग एटम्स को बैलेंस करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं एज कंपेरिजन टू आयरन, राइट। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने के कारण हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, राइट। तो स्टेप 2 लिख दीजिए, जो आप करने वाले हैं उसको लिखते जाइए ताकि टीचर को जब कॉपी चेक करे आपको तो पता चलता रहे कि भाई अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, इस स्टेप में क्या कर रहा है। मतलब आपको टीचर को बिल्कुल कंफर्टेबल रखना है, जब वो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बिल्कुल कूल हो, बिल्कुल काम हो, किसी भी टाइप का उसे आपका वर्क पढ़ते समय दिक्कत या परेशानी या डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथली आपका मैटर कंटेंट चले तो टीचर कंफर्टेबल रहता है, कॉपी आपकी बहुत अच्छी चेक होती है और किसी भी टाइप के ऑब्स्टिकल्स को नहीं आएंगे तो स्मूथली वो टिक 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 चलता चला जाएगा और आपकी कॉपी पर नंबरों की वर्षा होगी, राइट। इस टाइप से ध्यान रखिए कि आपके जो वर्किंग है, जो आपके राइटिंग कंटेंट है उसमें ओवर राइटिंग ना हो, कटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबे लंबे हैवी डिफ़िकल्ट शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आसान से स्मूथली, आसान सी लैंग्वेज, सिस्टमैटिक लैंग्वेज, टू द पॉइंट बात करिए,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बोर्ड के एग्जाम में बड़ी काम आती है। चलिए स्टेप 2 लिख दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग इस स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, करेक्ट। चलिए लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशन को अपनी, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2O. Look, how many oxygen atom are there on reactant side? One oxygen atom is there, and in product side there are 4 oxygen atom are there. ठीक है ना, रिएक्टेंट में हमारा केवल एक ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में हमारे 4 ऑक्सीजन एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जहां पर भी ऑक्सीजन आ रहा है, जिस मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन आ रहा है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसलिए बॉक्स लगा दिया था हमने कि बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम लोग चेंज कहाँ करेंगे, केवल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में हम लोग चेंज करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ साथ के साथ बॉक्स कंटिन्यू करते रहिए टाइप से, ताकि आपको याद रहे कि भाई इस बॉक्स के अंदर हमको छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन के 4 एटम, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम कैसे बनेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर H2O से पहले 4 लिख दें तो हमारे ऑक्सीजन के एटम 4 हो जाएंगे, राइट। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट ऑक्सीजन हैज 4 एटम, ऑक्सीजन हैज 4 एटम, बोथ साइड ऑक्सीजन इज बैलेंस। मीन्स यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ हमारे ऑक्सीजन के कितने कितने एटम हो गए भाई, 4 एटम दोनों तरफ हो गए हैं। 4 एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ reactant side as well as product side we are having 4 atom, correct? Is that clear? इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि कैसे हम लोगों ने क्या किया। हमने पहले पता किया कि भाई जो हमारा टारगेट है ऑक्सीजन और आयरन, उसमें से एक अधिक एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के एटम ज़्यादा है, तो उसको बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, राइट। तो ऑक्सीजन इस प्रकार से हमारा बैलेंस हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमारा सेकेंड टारगेट है। सेकेंड टारगेट कौन सा है भाई, आयरन, ठीक। स्टेप थर्ड, बैलेंसिंग ऑफ Fe। आयरन को बैलेंस करते हैं भाई। चलिए फिर से इक्वेशन लिखेंगे, जो अब हमारी स्टेप सेकंड में इक्वेशन आ गई, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4H2O gives Fe3O4 plus H2। ओके, देखते हैं Fe की कंडीशन क्या है। रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 3। देन व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली पुट 3 बिफोर द Fe से पहले 3 लिख दिया हमने, और ऐसा करते ही हमारा आयरन का एटम भी हमारे बैलेंस हो गए। तो जो टारगेट था हमारा, आयरन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे बैलेंस हो चुके हैं। तो हम लोग अपना टारगेट अटेन कर चुके हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन हमारी परफेक्टली बैलेंस हो गई है कि नहीं, या कोई और एलिमेंट या आइटम ऐसा तो नहीं है जो अनबैलेंस रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करो, दूसरा एलिमेंट जो बैलेंस था पहले वो अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए हमको बीच बीच में एक आध बार चेक करते रहना पड़ता है कि हमारी केमिकल इक्वेशन की कंडीशन क्या चल रही है, कितनी कितनी बैलेंस हो गई है, कितनी अनबैलेंस रह गई है, राइट। तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं टेबल फॉर्म कर रहा हूं, यहाँ पर कॉलम वही है 3, राइट। ऊपर वही लिखा जाएगा, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल लिख देता हूं मैं, Fe, C, Fe, O and H। Let's check। Fe reactant side 3, product side 3, O reactant side 4, product side 4. What's condition of hydrogen? Let's check। 4 to the 8, and here is still 2, right? So here we are having 8 atom, and product side we are having 2 atom। तो वो जो बताया था हमने, देखिए वही हो गया। जो हाइड्रोजन स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस था वो अब अनबैलेंस हो गया। तो अभी भी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा केवल एक ही एलिमेंट बचा है हाइड्रोजन, जिसको हमको बैलेंस करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाले हैं। कम टू द स्टेप 3।
स्टेप थर्ड पे आते हैं हम लोग, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। और इधर हमारी केमिकल इक्वेशन क्या आ चुकी है, उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। स्टेप 3, फोर्थ आ गया, 3 हो चुका है, स्टेप 4, राइट। दिस इज द केमिकल इक्वेशन विच वी हैव, 4H2O gives Fe3O4 plus H2, राइट। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे भाई, हाइड्रोजन हमको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, केवल यहाँ दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हमारा कितना है, 4 2 8। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको यहाँ पे 4 लिख देना है, सिंपली यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 4 लिखते ही हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 4 2 8, राइट। सो इन द लास्ट आज वी नो, पता चल गया कि हमको ऑक्सीजन बैलेंस, आयरन बैलेंस और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर चाहें तो हम लोग एक बार फिर से जो है टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं कि अभी भी कोई कमी तो नहीं रह गई है। एट लास्ट वी विल प्रिपेयर द टेबल, और उस टेबल की हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं। चलिए एक बार टेबल से और फाइनलाइज कर लेते हैं दैट ईदर आवर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। Symbol of elements here, number of atoms on reactant side here, number of atoms on product side. Let's check. FeOH. Fe, how many atoms of Fe are there? 3. This one. Product side 3, balanced, correct. Oxygen 4, here 4, balanced. Hydrogen 4 2 8, 4 2 8, balanced. So in this way we found that the chemical equation is balanced with respect to each and every element, that is Fe, H and O. Right. So now we'll write at the last, now the chemical equation is balanced. हमारी chemical equation balanced हो चुकी है। Clear? I hope the whole process, whole the method is clear in every mind. Right? In this way we can balance our unbalanced chemical equation step by step by finding our target and approaching, meeting our target. We can balance an unbalanced chemical equation. Right? तो ये एक important concept है जो आपको आना चाहिए समझ में, और इसी का बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट हम 11th में और भी सीखेंगे। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यहाँ पर हमारा एक बहुत आसान सा सिंपल मेथड है, इसको हम लोग कॉमनली हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ आपका ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। you can try some more question from your NCERT book, from your helping book, whatever you are having, वहाँ से आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन की बैलेंसिंग में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मस्ट शेयर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर which I have mentioned already. Previously I have told you about my WhatsApp number. You can share your doubts on that WhatsApp number and I will share with the solution of that your doubt. Right? Okay. Now it was about the balancing, how a chemical equation can be balanced. Right? Now the second topic, thing which I want to share with you, types of chemical reaction, the most important part of the chapter chemical equation reaction, types of chemical reaction, क्योंकि इस टॉपिक में से, इस पार्ट में से आपके फ्रीक्वेंटली बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ chemical
रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसकी हमको बात करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, बहुत सारी डिफरेंट काइंड की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें से हम लोग कुछ सेलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे, नॉट ऑल, राइट। तो उन्हीं की हम लोग बात करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज एडिशन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहली, सबसे आसान, एडिशन और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। हाँ भाई, एडिशन और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, बड़ा आसान सी ये केमिकल रिएक्शन है। जैसा कि इसका नाम है, बिल्कुल वैसी ही ये केमिकल रिएक्शन होती है। आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, राइट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, राइट। जब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो आपको आंसर एक मिलता है, राइट। चीज़ों को जोड़ने से एक सिंगल बॉडी, सिंगल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो सच केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट नोन एज एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि भाई एडिशन रिएक्शन के बहुत से एग्जाम्पल आप भी जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग शेयर करेंगे। एग्जाम्पल 1, राइट, CaOS. Now we have studied about the physical state of the matter, how we make a chemical equation more informative. उस चीज को अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं उसको यूज करना, ताकि ये चीज आपके प्रैक्टिस में आ जाए, राइट। प्लस H2OL, इट विल गिव CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं भाई? व्हाट इज नेम बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। CaOH होल ट्वाइस, or its common name is, one more name, it is known as by its common name, which is called slacked lime. Slacked lime. This, what is the name of common name of calcium oxide? बताइए, what is the name of common calcium oxide? ये पूछते हैं, बोर्ड में पूछ लेते हैं। What is the formula of slacked lime? What is the formula of quick lime? Right? Right. This is calcium oxide is known as quicklime. याद रखिए, right? Calcium oxide known as quicklime. Chemical name calcium oxide. General name quicklime. Chemical formula calcium hydroxide. Chemical name, general name slacked lime. And this reaction is highly exothermic reaction. कैसी है भाई? Highly exothermic reaction. Those chemical reaction in which heat energy is liberated are known as exothermic reaction. So this is exothermic reaction. ठीक है, ये वही रिएक्शन है जिस में हम लोग इंटीरियर्स में या रूरल एरिया में अभी भी, जिसको हम लोग कहते हैं पुताई करी जाती है चूने की, राइट। चूने की क्विक लाइम को हम लोग पहले रात में पानी में डिप करके रख देते हैं और उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग उससे पुताई करते हैं, राइट, वाइट वॉश करते हैं। इमीडिएटली क्यों नहीं करते? क्योंकि जब क्विक लाइम को पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो धीमे धीमे उसकी रिएक्शन होती है, बहुत अधिक हीट एनर्जी लिबरेट होती है, एंड दैट हीट एनर्जी इज डेंजरस फॉर द वाइट वॉश मैन। नुकसानदायक है, उसके जो प्रॉब्लम हो सकती है उसके ऊपर, अगर वो हीट एनर्जी उसके हाथ पैर जल सकते हैं। जो पानी इतना गर्म हो जाता है, पानी गिर गया, जो लाइम वाटर है, इट्स स्लैक लाइम जो है, ये आपका बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वो गिर गया तो जल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक दिन पहले रात को इसको क्विक लाइम को वाटर में डालकर रख देते हैं, मॉर्निंग में या नेक्स्ट डे इससे फिर हम लोग वाइट वॉश करते हैं, राइट।
So this is an example of your addition reaction. CaO plus H2O gives CaOH whole twice, right? Lime water. Lime water when used on the wall, right? Whenever the lime water is used on the wall, after the some time it appears milky white. बिल्कुल सफेद सफेद दीवारें दिखाई पड़ती है कुछ समय बाद, right? वैसे तो आपका लाइम वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आपका सिंपल पानी जैसा होता है, या समर पानी बिल्कुल वैसे ही होता है। उसी की जो है दीवारों पर ब्रश से उसका एक लेयर चढ़ाई जाती है, लेकिन वो कुछ समय बाद वाइट हो जाती हैं। शाइनी वाइट वॉल बिकम्स। व्हाट हैपेंस? द केमिकल रिएक्शन अकर at the surface of the wall. What happens? It happens CaOH whole twice like lime combined with carbon dioxide. This carbon dioxide is from atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्लैक्ट लाइन से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, right? CaCO3 is formed. Calcium carbonate is formed, which is white in color. This is white in color, right? So due to the formation of calcium carbonate at the surface of the wall, it looks shiny white, right? जब ब्रश से किया जाता है स्लैक लाइन, राइट, तो वो बिल्कुल पानी जैसा होता है, कुछ समय बाद उसमें व्हाइट कलर आता है। तो ये वाली बात ध्यान रखिए, that white color is due to the formation of calcium carbonate at the surface of the wall on reacting with atmospheric carbon dioxide, right? This chemical reaction is used in whitewashing. Whitewashing. We use this chemical equation in chemical reaction in whitewashing, right? So this is a very good and very excellent example of combination reaction or addition reaction. Let's take some more example. और एग्जाम्पल लेते हैं और बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 2, वेरी इजी, बहुत आसान सा एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको। C+O2 solid gas gives CO2, सभी जानते हैं, right? This is once again the example of combination or addition reaction. और बात करिए 2H2G plus O2G gives 2H2OL. This is once again combination or addition reaction. और बात करिए 2MgS plus O2G gives 2MgO. This is again the combination or addition reaction. So in this way it's very clear, बात आपको समझ में आ गई होगी what happens in combination or addition reaction when reactants combine together to give single product, simply known as combination or addition reaction. Got it? Okay, now let's move towards the second kind of reaction. Second type of reaction or second kind of reaction, which is decomposition. Reaction, decomposition reaction में पहली हमारी कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. नाउ वी टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हम लोग और कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, राइट? डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन सिंपली मीन ब्रेक डाउन, टूटना, राइट? कॉम्बिनेशन, एडिशन जुड़ना, डिकम्पोजिशन टूटना, ब्रेक डाउन. So when a reactant, single reactant break down into some more simpler product, two or more than two products are formed. This simple reaction is known as decomposition reaction or dissociation reaction, right? So when a single reactant break down
or dissociate into two or more than two simpler product. This is simply known as decomposition or dissociation reaction. और ये बात पता है हमको कि भाई ब्रेक डाउन करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए वी नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी. Either it is a heat energy or it is a sun energy or a light energy or electricity. On the basis of those energy used, the decomposition reactions are known as thermal decomposition. Right? Thermal decomposition में क्या होगा? अगर हम लोग reactant को गर्म करेंगे, heat करेंगे, therm means thermal energy, temperature. Right? So if we increase the temperature of reactant by heating it, it decomposes into the simpler one. This is known as thermal decomposition. For example, thermal decomposition, let's take an example. CaCO3 heat triangle. This triangle symbol is used for heating. Triangle simply indicate that reactant is heating. Right? This triangle gives CaO plus CO2, right? This is a thermal decomposition, right? Because this decomposition breakdown of the reactant into products occurs in presence of heat energy. That's known as thermal decomposition, right? Or if that decomposition occurred in presence of electricity, it is known as electrolysis, right? What happens? 2H2O, L, electricity. In presence of electric current, what will happen? 2H2G plus O2G. This is called electrolysis. This is called thermal decomposition. The first one is thermal decomposition. Second one is electrolysis. Example third, electrolysis. Let's take one more example. Example 4. Heat may be in the form of light. So if the reactant break down into product in presence of sunlight, right, this is known as photochemical decomposition, right? Photochemical decomposition. 2AgCl will give 2Ag plus Cl2 gas in presence of sunlight. Or similar way, 2AgBr solid decompose into 2Ag plus Br2. This reaction is used in photography. Photography, right? These are known as photochemical decomposition reaction. Okay, so this is about the decomposition reaction, thermal decomposition, when that breakdown of reactant molecule into the simpler or molecules occur in presence of heat energy, so known as thermal decomposition. If the decomposition of reactant molecule or breaking of reactant molecule occur in presence of electric current or electrical energy, known as electrolysis. Example third, electrolysis of water. We know that hydrogen gas and oxygen gas are formed when the decomposition occur in presence of sunlight, which is also kind of energy. We know sunlight. This is known as photochemical decomposition, right? 2AgCl will give 2Ag plus Cl2. 2AgBr gives 2Ag plus Br2. So these are the two types of chemical reaction. The first one was which one? Addition. Second one, decomposition with example. Okay.
Let's take one more reaction, one more type of reaction. Third one. Third one is displacement reaction. Third type of reaction, displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि इसका नाम ही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, या इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट? डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। Substitution, right? It is also known as substitution reaction. और substitution से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। Substitution, substitute कर देना, replace कर देना, हटा देना, एक की जगह दूसरे आ जाना, ये कहलाता है substitution, displacement, right? Replacement, right? So it's very simple. What will happen in this in such reaction? Example देखते हैं, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। Zn plus Cu SO4 aqueous will give ZnSO4 Aq plus Cu solid. It's a very good example. Very good example of displacement reaction. Correct? So what is going on here? क्या हो रहा है यहाँ पर? दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए। When zinc rod is dipped in the aqueous solution of copper sulfate, right? Its color changes from blue to colorless, right? So what happens due to the? This is simply due to the we can say displacement or substitution of copper by zinc. Here zinc displaces the copper from copper sulfate solution and form zinc sulfate. Look, copper is substituted or replaced by zinc. That's why this reaction is known as displacement or substitution reaction, right? In the similar way, we can also write down FeS plus CuSO4Aq will give FeSO4Aq plus Cu, right? This is once again substitution or displacement reaction, right? This is also an example of substitution or displacement reaction. We can take one more reaction, Pb CuCl2 aqueous solution. It will give PbCl2 aqueous plus CuS, right? So what is common in each reaction? हर रिएक्शन में क्या कॉमन है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, खुद जाके वहां पर लग रहा है। Such type of chemical reactions are known as substitution or displacement reaction. Got it? अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई क्या उसका उल्टा भी पॉसिबल है? जैसे हमने यहाँ पर किया था कि भाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या इस रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन पॉसिबल है? दैट इज CuS ZnSO4 Aq क्या बनेगा? क्या कॉपर सल्फेट और जिंक बनेगा? नो, नहीं बनेगा। ये रिएक्शन नहीं होगी, राइट? तो अगर हम लोग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड या कॉपर की स्ट्रिप डिप करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जबकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की स्ट्रिप डिप करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। कैसे पता चलेगा हमको? कैसे पता चलेगा भाई कि कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी? इसके लिए हम लोग बात करेंगे अपने
एक और चैप्टर में मेटल्स नॉन मेटल में, वहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट है, राइट। छोटी सी बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस less reactive element from its salt solution. This is the substitution law, you can say. A more reactive element can replace or substitute a less reactive element from its salt solution, right? तो ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव होता है। इसके मतलब कॉपर से जो भी मेटल अधिक रिएक्टिव है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को सब्स्टिट्यूट करेगी। अगर कॉपर किसी से अधिक रिएक्टिव है तो वो कॉपर उस एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब कौन किससे अधिक रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है, इसी के बारे में होती है रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। इसकी बात करेंगे हम लोग चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल में। वहाँ पे पता चलेगा कौन किससे अधिक रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसे बनी, क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या यूज है। लेकिन अभी इतनी सी बात आपको समझ लेनी है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेसेस और सब्स्टिट्यूट less reactive element from its salt solution, right? So the reactivity series concept is applicable while we are studying displacement reaction or substitution reaction. I think this reaction is also clear to all of you, right? Substitution reaction or displacement reaction. Okay, let's come to the next type of reaction. One more type of reaction, basically two more type of reaction are in syllabus. Let's discuss the fourth one, double displacement reaction. Double displacement reaction by हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं, जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक रिएक्शन लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। Na2SO4 plus BaCl2 give 2NaCl plus BaSO4, correct? Clear? Is it clear to all? When sodium sulfate is added into barium chloride solution, we'll get sodium chloride and barium sulfate, correct? Right? Here basically barium sulfate बताया था हमने, बात की थी आपको, पीपीटी के बारे में बताया था, right? Barium sulfate is formed as in solid state and it settle down as soon as it form. It is a PPT, precipitate, PPT, barium sulfate, because it doesn't dissolve in the water. It settle down at the bottom of the container as soon as it form, right? So what is going on here? Look, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम डिस्प्लेसेस बेरियम, बेरियम डिस्प्लेसेस सोडियम। बेसिकली यहाँ पर ये एक दूसरे को इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ मेटल एटम अकर बिटवीन दीज टू कंपाउंड। ए ने बी को डिस्प्लेस किया, बी ने ए को डिस्प्लेस किया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज हियर द बेसिकली two atoms or elements of the atoms of the two element exchange their position basically, right? So whenever such type of exchange occur between the atom, this is simply known as double displacement reaction. And in general,
commonly here precipitate is formed. That's why it's also known as precipitate reaction, क्योंकि यहाँ पर precipitate फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग precipitate reaction भी कहते हैं, right? So here just we have discussed the type of chemical reaction and balancing of a chemical equation. ठीक है ना? I hope each and everything is clear in your mind. You practice, इस सब चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, बैलेंसिंग कीजिएगा केमिकल इक्वेशन के अधिक से अधिक, और जो आपको नहीं समझ में आए उसको शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम लोग उसको फिर डिस्कस करेंगे, राइट? तो आज के लिए हम लोग नहीं रखेंगे। नेक्स्ट बहुत थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन अपना इस चैप्टर का रह गया है, दैट आई विल शेयर विद यू इन द एपिसोड 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट? Episode 3, it was the second session of chemical reaction and equation. After that we'll have your doubt class. In that doubt class I will share your doubts. तो आपके जो भी डाउट हो, जो भी परेशानियां हो, निकाल के रख लीजिएगा और मेरे को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, राइट? या टेलीग्राम पर भी आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास उसके बाद हम लोग अपनी डाउट क्लास लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लास्ट प्रीवियस ईयर आस्क्ड बोर्ड के क्वेश्चन शेयर करेंगे। इन सच वे विल कंप्लीट one chapter, right? And the same process we will follow for the rest of the lessons. Okay, don't forget to send me a request 9457433817. It's my WhatsApp number. And जिसने भी अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, और आने वाले सेशन में इसी प्रकार से हम आपके साथ चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट सीरीज रिवीजन कम टेस्ट सीरीज वाले बोर्ड एग्जामिनेशन लेके आए हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसको शेयर करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट्स भी शेयर करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। माय टेलीग्राम आईडी इज t.me Cam Bharti. This is my Telegram ID, t.me Cam Bharti, right? And the name of the Telegram channel is Bharti Sir Ki Class since 1995, right? The name of the Telegram group is Bharti Sir Ki Class since 1995, because I am teaching in this profession from 1995. Okay. So t.me Cam Bharti is a Telegram ID, right? This is the WhatsApp number 9457433817. Send your request, join me. Don't forget to subscribe this YouTube channel. Right? Till then, good night. We'll meet in the next session. Have a nice day. Thank you.